کرتے سوچنے لگا یا اللہ تیرے محبوب نے بلایا تو ہے لیکن میرے پاس پیسے بھی نہیں, میرے پاس مال بھی نہیں, لیکن عاشق عاشق ہوتا ہے, آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, یقین تھا اپنے محبوب پر, آقا نے بلایا ہے تو مدینے جانے سے روک کون سکتا ہے. جلدی سے سامان سمیٹا اور اس کے بعد اپنے کندھے پہ گٹھری ڈالی اور گٹھری ڈال کر کے بندرگاہ کی طرف چل پڑا. تو کیا دیکھتا ہے, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں, ہندوستان کی تاریخ میں یہ حقیقت ہے حقیقت. میری قوم کے جوانوں, جب وہ بندرگاہ پہ پہنچا تو کیا دیکھا, جہاز جو تھا پانی کا جہاز, وہ سب اس میں بیٹھ چکے تھے بیٹھنے والے, مگر وہ آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا. ملاح جسے نا خدا بھی کہتے ہیں, وہ کشتی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر کشتی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھی. ایسے میں ملاح سمجھدار تھا, اس نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا. جب اس نے دیکھا تو ایک دیوانہ اپنا ایک جو وہ جھولا کندھے پہ ڈالے کھڑا حسرت سے دیکھ رہا تھا. پوچھا کہاں جانا ہے, تو کہا مجھے مدینے جانا ہے. اس دور میں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, ویزے کا ماحول نہیں تھا. اللہ اکبر, جیسے عام طور پہ لوگ بسوں میں بیٹھ کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں, ویسے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر کے چلے جاتے تھے. اللہ اللہ, جیسے اس دیوانے نے کہا مجھے مدینے جانا ہے تو اس کو کشتی میں بٹھا لیا گیا. مورخ لکھتا ہے جیسے دیوانہ کشتی میں بیٹھا, کشتی چلنے لگی اور کشتی نے اپنا سفر شروع کر دیا. اللہ اکبر, سب کے کوئی نہ کوئی معلم تھے, سب کو لینے کے لیے کوئی نہ کوئی آنے والا تھا, لیکن جیسے ہی جہاز جدہ کے ساحل پر پہنچا تو کیا دیکھا, سب کے لیے کوئی نہ کوئی معلم آیا تھا لینے کے لیے, میزبان آیا تھا لینے کے لیے. اس نے سوچا مجھے تو حضور نے بلایا تھا لیکن مجھے کون لینے آئے گا, مجھے یہاں سے مدینے منورہ کون لے جائے گا, یہاں سے جدہ سے بھی مدینے جانے کی اوقات نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر قربان, جیسے ہی جدہ کے ساحل پر یہ اترا تو ہر بندے سے شریف مکہ پوچھ رہے تھے, یعنی مکہ کا حکمران پوچھ رہا تھا کیا تم فلاں بن فلاں ہند سے آئے ہو, کیا تم فلاں بن فلاں ہند سے آئے ہو, کیا تم فلاں بن فلاں ہند سے آئے ہو. سب کہتے تھے نہیں اور آگے بڑھتے جاتے تھے. جب اس کی باری آئی تو پوچھا کیا تم فلاں بن فلاں ہند سے آئے ہو, اس نے کہا ہاں میں ہند سے آیا ہوں, لیکن آپ کو میرا نام کیسے پتا اور آپ کون ہو. تو اس نے کہا میں شریف مدینہ یعنی مدینے کا حکمراں ہوں, مدینے کا جو ہے وہ میں حکمراں اور حاکم ہوں. تو کہا تم حاکم ہو کر مجھے لینے آئے, کہا ہاں میرے آقا نے میرے خواب میں آ کر فرمایا کہ اگر تو میری میزبانی کرنا چاہتا ہے تو ہندوستان سے میرا عاشق آ رہا ہے, اس کی خدمت کر لینا, گویا کہ تو نے میری خدمت کر لی. اللہ اکبر, اس عاشق نے پھوٹ پھوٹ کر رویا. اللہ اکبر, بلایا بھی اور انتظام بھی کیا شاہانہ کیا کہ وقت کے بادشاہ کو میری خدمت میں معمور کر دیا. اس کے بعد اس بندے کو جدہ سے مدینے منورہ لے جایا گیا. اللہ اللہ, سارے انتظامات موجود تھے. میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں درود پڑھو, کثرت سے درود شریف پڑھو, اپنی زبان سے غیبت مت کرو, چغلیاں مت کرو, گالیاں مت دو, کسی کو برا مت کہو, نفرت کی بولیاں مت بولو, بلکہ اگر پڑھنا ہے تو درود پڑھو. درود پڑھو, درود شریف کی برکت ہے. اللہ اکبر, درود پڑھنے والے کو قبر میں مٹی نہیں کھا سکتی, درود پڑھنے والے کا کفن میلا نہیں ہو سکتا, درود پڑھنے والے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. اللہ اکبر, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. لیکن درود پڑھو, درود پڑھنا آسان ہے. سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر وقت درود پڑھا کرو, لیکن با وضو پڑھو تو افضل ہے, اور جتنے ادب سے پڑھو اتنا زیادہ برکتیں ملے گی. وہ عاشق رسول جیسے مدینہ منورہ پہنچا, سارے انتظامات موجود تھے, سارے اکرام موجود تھے, سارے چیزیں موجود تھی. ایسے عالم میں اللہ اکبر
अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में उसने कहा गुस्ल करना है, कपड़े पहने, और कपड़े पहनकर जब कहा गया खाना तो खा लो, कहा नहीं, आका ने बुलाया है, पहले मैंने अपना काम करना है। वो गुंबद के जो किंगरे टूट गए हैं, वो किंगरों को मैंने तामीर करना है, और उसके बाद उसकी कमर में रस्सी बांधी गई और वो बंदा गुंबद पर चढ़ गया। अल्लाह अकबर। वो गुंबद शरीफ, आफ्ताब जिसका आंखों से बोसा लेते हैं, औलिया जिसको हसरत से देखते हैं, आशिक को क्या मकाम अता किया गया कि उसको किंगरे की तामीर के लिए गुंबद पर चढ़ा दिया गया। और जब उसने किंगरा तामीर कर दिया और जब वो किंगरा तामीर हो गया तो नीचे बादशाह खड़े होकर कहते थे, भाई काम हो गया, अब नीचे आ जाओ, काम हो गया, अब नीचे आ जाओ, काम हो गया, अब नीचे आ जाओ। लेकिन वो नीचे आने को तैयार न था। जब लोगों को चढ़ाया गया तो क्या देखा कि गुंबद पर उसका सर ढलका हुआ था, यानी कि उसकी रूह कफसे उनसुरी से परवास कर चुकी थी। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आती है, उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शहीद की राहत, खाके चितैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। देखो उसके इश्क ने उसको किस मकाम पर पहुंचाया। आज जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को फिर इश्क रसूल की तरफ आओ, फिर मोहब्बत रसूल की तरफ आओ। और आखिरी बात बस करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। मुसलमानों, इश्क हुजूर का दीदार कराता है, इश्क हुजूर की कुर्बत अता करता है, इश्क अल्लाह अकबर गुमनामों को नेकनामी अता करता है। अरे सबसे दिल लगाने वालों, एक मर्तबा आमिना के लाल से दिल लगा कर देखो, बड़ी जिम्मेदारी से इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं। जब तन्हाई में रहोगे तो यूं लगेगा कि हुजूर तुम्हारे साथ साथ है। अगर कोई तुम्हें रुला देगा तो ऐसा लगेगा कि आंसू निकल रहे हैं और हुजूर तुम्हारे आंसुओं को खुश्क कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब तुम्हें कोई सताएगा तो यूं लगेगा उन्होंने तसल्ली का हाथ तुम्हारे सीने पे रख दिया। जो आखिरी में ज्यादा बात न करते हुए एक आखिरी बात बस करता हूं, आशिक बनो, अपनी औलाद को आशिक बनाओ, अपने दोस्तों को आशिक रसूल बनाओ, इसलिए कि इश्क मुस्तफा ईमान का भी ईमान है, इश्क मुस्तफा जाने ईमान है। अल्लाह अकबर। इश्क वो है जो इंसान को इतना बुलंद कर देता है, जहां फरिश्तों के पर थकते हैं वहां आशिकों की रिसाई हो जाती है। इसलिए आशिक बनो। अल्लाह अकबर। दुनिया के हालात अभी बदलेंगे, सच्चे आशिक रसूल बनो। आप जानते हैं सहाबा किराम की कायनात में यूं तो हर सहाबी आशिक रसूल है, लेकिन अब जरा दिल के कानों से सुनना, और आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। मुझे शिकायत आपसे नहीं, इसलिए कि मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि आप इतना जो है वो उलझे हुए थे, लेकिन बाद में आप बहुत संजीदा हो गए। तो बहुत संजीदा एक बात आपसे कह दूं, जिंदगी भर गांठ बांध लेना, अपने बच्चों को सुनाया करना। क्या सहाबी तो हर सहाबी आशिक रसूल है, लेकिन सहाबा में एक सहाबी है जिनको आप इश्क और मोहब्बत का इमाम कह लीजिए। अल्लाह अकबर। उस जात को दुनिया सैयदना बिलाल हबशी के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह। बिलाल कैसे आशिक रसूल थे। अल्लाह अकबर। जब भी इश्क का नाम आता है तो बिलाल हबशी की तस्वीर ज़हनो दिमाग पर उभरती है। बज़ाहिर कह रहा हूं, बज़ाहिर चेहरा बहुत ज्यादा जो है वो सफेद नहीं था, बज़ाहिर चेहरा बहुत ज्यादा सफेद नहीं था, रंग सांवला था, बल्कि यूं कह दे लिखने वालों ने लिखा कि रंग पक्का था। यूं कह ले कि हजर अस्वद का हुस्न लिए हुए था, खिलाफे काबा का हुस्न लिए हुए था बिलाल हबशी का रंग। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, जिसके होठ बड़े मोटे मोटे हो, जिसके दांत बड़े बड़े हो, जो हबशी हो, हबशियों की क्या इज्जत होती है, हबशियों का क्या वकार होता है। और वो भी बिलाल एक गुलाम थे, गुलाम एक जालिम के गुलाम थे। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, बिलाल हबशी अव्वलीन ईमान लाने वालों में से थे। बिलाल अव्वलीन ईमान लाने वालों में से थे, जो सबसे पहले चंद लोग 8-10 लोग ईमान लाए, उसमें बिलाल हबशी भी थे। लेकिन आपको बताऊं, जब सैयदना बिलाल हबशी ने ईमान लाया तो उसके मालिक को किसी ने चुगली कर दी कि बिलाल
बिलाल जो तेरा गुलाम है वो तो मोहम्मद पे ईमान ला चुका है, वो तो मजहब छोड़ चुका है, अपना पुराना दीन छोड़ चुका है। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, बिलाल हबशी को तख्ती की रेत पर लिटाया जाता था। सैयदना बिलाल हबशी को तख्ती की रेत पर लिटाया जाता था। मेरी कौम के जवानों, हालात का शिकवा करने वालों, क्या आज इस इश्क की सजा ये दी जाती है हमें कि हमें भी रेत पे लिटाया जाता है? नहीं नहीं, बल्कि रेत पर लिटाकर, वो भी तख्तियों की रेत पे लिटाकर सीने पे पत्थर रखा जाता था और बिलाल से कहा जाता था, बिलाल इस्लाम को छोड़ दो, बिलाल मोहम्मद अरबी को छोड़ दो। तो बिलाल कहते थे, वल्लाह मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो करवा सकता हूँ, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ सकता। ओ नमाज को छोड़कर सोने वालों और इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, मुझे बताओ तो सही, बिलाल की तरह अगर हमें मारा जाए तो हम मुसलमान भी रह पाएंगे? अल्लाह अकबर। लेकिन वो क्या इश्क था, जब जब मारा जाता कहते थे, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और आप जानते हैं मेरे आका के उस शैदाई आशिक की गर्दन में रस्सी डाल दी जाती और रस्सी डाल करके मक्के के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में उस रस्सी को दे दिया जाता। अल्लाह अकबर। वो रस्सी को खींचते हुए मक्के के बच्चे मक्के की गलियों में बिलाल को फिराते थे गले में रस्सी डालकर। सोचो इश्क वालों के साथ क्या सलूक किया गया, अहले इश्क के साथ क्या सलूक किया गया। लेकिन एक मर्तबा किसी ने बरगलाने की कोशिश की, बिलाल तू इतना मोहम्मद अरबी से प्यार करता है, तू इतना मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करता है, लेकिन वो तो कभी तुझे पूछते भी नहीं, तू पिटाई खाता है, तुझे इतना पीटा जाता है, तुझे इतना मारा जाता है, क्या कभी वो तेरी खैरियत भी पूछते हैं? तो बिलाल ने क्या कहा पता है? जवाब देखो आशिक का जवाब। बिलाल हबशी कहते हैं, नादानो मेरे महबूब के खिलाफ मुझे बरगलाने वालों, मेरे आका के खिलाफ मुझे बरगलाने वालों, तुम ये कहते हो कि मुझे पीटा जाता है, वो मेरी खैरियत क्यों नहीं पूछते? तो तुम्हें नहीं पता, बाजार का उसूल ये है कि जब भी बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो पहले ठोक ठोक कर बजा कर देखते हैं कच्चा है या पक्का है। तो मेरा आका भी मुझे पिटवा पिटवा करके ठोक ठोक के देख रहा है, बिलाल इश्क में कमजोर है या पक्का है। जिस दिन महबूब को ना पसंद आएगी दुनिया से खरीद करके मुझे बुलंद कर देगा। याद रखना, अगर आज दुनिया में तुम्हें पीटा जा रहा है, अगर आज दुनिया में तुम्हें मारा जा रहा है, मायूस मत होना, मदीने वाला आका पिटवा पिटवा कर चेक कर रहा है आशिक मेरे कमजोर है या पक्के हैं। लेकिन हमें सुन्नते बिलाल पर अमल करना होगा। फिर एक दिन वो आता है, अब सुन ले बिलाल हबशी की जिंदगी, इसलिए कि मोहम्मद अली भाई ने जो है वो पर्वते दिल पर ऐसा तार छेड़ा है कि मैं चाहता हूं कि उसी का हालांकि मैं नाम लेकर जहन में आया था, लेकिन अब उस पर गुफ्तगू नहीं, अब इसी पर गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह अकबर। ताकि सीनों के अंदर इश्क मुस्तफा ताजा हो जाए। बिलाल हबशी एक दिन मार खा रहे थे, पीटे जा रहे थे, हुजूर अलैहि सलाम करीब से गुजरे, आंखों में आंसू आ गए और दुआ की, अल्लाह मेरे बिलाल को सब्र अता फरमा, मेरे बिलाल को सब्र अता फरमा। और फिर फरमाया, है कोई मक्के में जो मेरे आशिक को आजाद कर दे, जो बिलाल को आजाद कर देगा अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देगा, जो बिलाल को आजाद कर देगा अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देगा। ये बात सैयदना सिद्दीक अकबर तक पहुंची। अफजलुल बशर बादल अंबिया की तहकीक सिद्दीक अकबर